Just Facebook. No room, no room. Room नहीं. Just Facebook. Praise the Lord. I declare God is changing someone's life. Amen. Praise the Lord. I declare God is changing someone's life. Hallelujah. Hallelujah. Say, Father, Father, we come to you. we come to you. Touch my life Touch my life in another way. in another way. Touch the area where I am weak. Touch the area where I am weak. Show me thy way. Show me the way. Lord, Lord, touch touch my my life. Make me according to your will. Make me according to your way. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Say, Father, Father, I am agree with your word. I am agree with your words. What it says that I am. What is say that I am. Holy Spirit, Holy Spirit, teach me, teach me, guide me, guide me, give me understanding. give me understanding. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, God loves you. God loves you. Tell your neighbor. God loves you. Tell your neighbor, God loves you. God loves you. And tell your neighbor, His love is enough for me. His love is enough for me. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. As we are learning the series called Dealing with the Spirits, और जैसे कि हम रूहों के बारे में सीख रहे हैं, today we are dealing with a spirit called the spirit of jealousy. और आज जिस रूह के बारे में हम सीखने वाले हैं वो है हसद की रूह. Spirit of jealousy. हसद की रूह. Spirit of jealousy. हसद की रूह. Many people बहुत से लोग you will see in your life, आप अपनी जिंदगी में देखते हैं they will be jealous. और वो एक दूसरे से हसद करते हैं They will be jealous. और वो जेलस करते हैं, वो हसद करते हैं. But a lot of people, लेकिन बहुत से लोग they have this spirit, और वो ये रूह रखते हैं, but they don't know they have the spirit of jealousy. लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके अंदर ये रूह काम कर रही है. So let's have a look और आए हम देखेंगे from where the jealousy started. और कहाँ से जो है वो हसद शुरू हुआ. So jealousy is not started in earth. और जो हसद है वो जमीन से शुरू नहीं हुआ, Jealousy started from heaven आसमान से शुरू हुआ, because it is a spirit. क्योंकि ये एक रूह है. So jealousy first, और पहले नंबर पर हसद it comes in heaven वो आसमान पर आया through a person called Lucifer. और एक शख्स के जरिए से जिसे हम कहेंगे लूसीफर. So jealousy comes और हसद आता है into this world इस दुनिया में in the form of spirit रूह की सूरत में through the person or a guy called Lucifer. और यहाँ किसी शख्स जिसको हम कह सकते हैं उसका नाम है लूसीफर. Yes, from Lucifer. और लूसीफर से हसद दुनिया में He आया was perfect in his ways. और वो अपने तरीकों में कामिल था. The Bible says he was perfect in his ways और वो अपने राह और रस्म में कामिल था until उस वक्त तक sin founded in him. और उस अंदर जब गुनाह पाया गया. उसके अंदर गुनाह पाया गया. Now listen. सुनिएगा. He was anointed cherub. और वो एक करोबी ममसूख करोबी He was था. anointed, yes, और वो ममसूख करोबी था but he was jealous. लेकिन वो हसद करता था. Today we will learn about how to deal. और आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने इसे डील करना. इसको डील करना है. The spirit of jealousy. और हसद की रूह को. Spirit of jealousy. और हसद की रूह से. You will find this spirit. और आप ये रूह देख सकते हैं in the world, दुनिया में, in the church, चर्च के अंदर, in the families, खानदान में, in the school, स्कूल के अंदर, in every area. और आपकी जिंदगी के हर हिस्से में आप इसको You will देख सकते find हैं. this spirit. आप इस हसद की रूह को देख सकते हैं. People will be under this spirit. और लोग जो हैं वो इस रूह के नीचे काम कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Now I'm telling you a truth. और आज मैं आपको एक सच्चाई बयान करूं. When you know this spirit, और जब आप इस रूह को जानते हैं God will give you the grace for deliverance. तो खुदा फिर आपको ये कुव्वत बख्शता है कि आप उससे रहाई पाएं. Let me start और आए मैं इसका आगाज करता हूँ from family, खानदान से. like a husband and wife. और आप कह सकते हैं मियाँ बीवी के दरमियान. So
I will build my case on one verse first. और मैं अपना जो केस है उसकी शुरुआत करूंगा एक आयत से, That is about husband and wife. जो कि मियाँ बीवी से मुतल्लिक है। I know you all people read your Bible, और मैं जानता हूँ कि आप सब अपनी कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, but let's have a look on this verse, Numbers chapter 5, verse number 14. गिनती 5 बाब उसकी 14वीं आयत. And the spirit of jealousy came upon him, and the spirit of jealousy came upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled. Or if the spirit of jealousy came upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled. Yes, please read it. वर्ष कौन सी? 14. और उसके शौहर के दिल में गैरत आए, और वो अपनी बीवी से गैरत रखाने लगे, हालांकि वो नापाक हुई हो, या उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपने बीवी से गैरत खाने लगे, हालांकि वो नापाक नहीं हुई. पंजाबी और हिंदी. और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री Yes, this is a good word. उसके जलन. पति के दिल में जलन. Tell your neighbor. Fire in the heart. फायर इन द हार्ट. यार वो साड़ पैंदा दिल च. सडनली Tell your neighbor, do not be jealous from anyone. किसी से भी हसद मत कर, पर नाल दे नु को कि दिल च सड़या ना कर. दिल में मत जला कर. Yes, this spirit ये रूह controls the heart. दिल को कंट्रोल करती है. This spirit will not control your eyes, ये आपकी आंखों को कंट्रोल नहीं करती, not your ears, आपके कानों को भी नहीं, not your hairs, आपके बालों को भी नहीं, not your clothes. आपके कपड़ों को भी नहीं, Controls your heart. आपके दिल को कंट्रोल करती है. Directly connecting with the heart. और ये बिल्कुल इसका ताल्लुक है आपके दिल के साथ. Today I declare, और आज मैं आपकी जिंदगी पे let बोल the spirit of Christ control your heart. कि यीशु मसीह की रूह आपके दिल को कंट्रोल करे. Hallelujah. हालेलुया. Now what he says, पढ़िएगा 14 आयत. और उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, हालांकि वो नापाक हुई हो, या उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगी, हालांकि वो नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स अपनी बीवी को काहन के पास हाजिर हो. No, verse 14. Yes. अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, और किस वह पे जलने लगे? अपनी स्त्री अपनी स्त्री पर जलने लगे. हाँ? औरत. Wife. Hello. Many husbands, बहुत से शौहर they are jealous of their wives अपनी बीवियों से जलते हैं because of they are good qualified. क्योंकि वो अच्छी पढ़ी लिखी है, They are beautiful. खूबसूरत है, They are good to speak. और वो अच्छा बोल लेती है, They are good looking. और वो अच्छा दिखती है. Many wives, they are jealous of their own husbands. और बहुत सी जो बीवियां हैं वो अपने शौहरों से हसद करती हैं, Not that they are their husband. और अपने शौहरों से इसलिए कि नहीं वो उनके शौहर हैं. No. They have the spirit of jealousy. क्योंकि उनके अंदर हसद की रूह है. Many wives, they are jealous of their husband. और बहुत सी बीवियां अपने शौहरों से हसद करती हैं. Why? क्यों? He's good looking. क्योंकि वो खूबसूरत है, More than them. उससे ज्यादा खूबसूरत है, More qualified. और उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, More good speaking. और अच्छा बोलने वाला उससे ज्यादा. Spirit of jealousy. और यहाँ पर है हसद की रूह. So it is not the public thing. और ये कोई अवामी चीज नहीं है, It will start from your own heart. और ये आपके अपने दिल से इसकी शुरुआत होती है. Today you will learn much about the spirit of jealousy. आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं हसद की रूह से So मुझे. let me build my case on the definition. What is jealousy? और मैं इसके तारीफ करवाऊंगा इसकी डेफिनेशन से कि हसद है क्या. What is jealousy? और हसद है क्या. Tell your neighbor. साथ वाले से कहिए, Are you here? क्या तू यहाँ पर है? Do you know? क्या तू जानता है? Do you know? क्या तू जानता है? Tap on the shoulder. Do you know? अपने को थपकाए और बोले, Do you know? क्या तू जानता है? What is jealousy? हसद क्या है? Hello? Are we together? क्या मेरे साथ है? Rama nama sharama. How many people see that people in their life they are jealous from others? और कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों की जिंदगी से जेलस होते हैं? No. How many people see yes?
They saw the people who were jealous of someone. जिन्होंने लोगों को देखा कि जो एक दूसरे से हसद करते हैं And you knew. और आप उन्हें जानते भी हैं। So, agree with me. क्या आप मेरे साथ है? So, if a person believes और अगर कोई शख्स ये यकीन रखता है somebody does not deserve और ये शख्स इस चीज के काबिल नहीं है what they have, but you deserve it. और जो कुछ उसके पास है लेकिन वो आपको मिलना चाहिए, This is called jealousy. और इसको हम कहेंगे हसद। When somebody says और अगर कोई कहता है this person ये शख्स does not deserve it, इस चीज के काबिल नहीं है I am the person who deserve this. और मैं वो शख्स हूँ जिसको ये चीजें मिलनी चाहिए थी, This is called jealousy. और इसको कहेंगे हसद। He saw the God और उसने खुदा को देखा on the throne और उस तख्त पर बैठे with देखा glory and majesty. और अपने जलाल के साथ और मामूरी के साथ, He saw it और उसने उसे देखा that the things are created by him. उसके जरिए से चीजें खलीक होती हैं, Thrones are created by him. उसके जरिए से खलीक होते हैं Powers is given through him. और उसके जरिए से ताकतें दी जाती हैं, He saw it. और उसने देखा Now his heart is saying, और अब उसका दिल कह रहा है I will make my throne great और मैं इससे ज्यादा अजीम अपना तख्त बनाऊंगा above his thrones, इससे बड़ा और इससे ऊपर। that he don't deserve to be a God. वो इस काबिल नहीं है कि वो खुदा हो, Lucifer is saying, I will be the God. और वो लूसीफर कह रहा है कि मैं खुदा हूँ। So when you say this person does not deserve it, और जब हम कहते हैं कि ये शख्स इस चीज के काबिल नहीं है, I am person who deserves it. मैं वो हूँ जिसको ये मिलना चाहिए था, That is called you are carrying the spirit of jealousy. का मतलब है कि आप हसद की रूह के अंदर हैं। Are we together? क्या आप मेरे साथ है? Are you learning? क्या आप सीख रहे हैं? When you are trying to destroy someone, और जब आप कोशिश करते हैं किसी को तबाह करने की, this is called the spirit of jealousy. और ये है हसद की रूह। Destroying someone is a spirit of jealousy. और किसी को तबाह करना है हसद की रूह, Destroying someone is a spirit of jealousy. और किसी को तबाह कर देना हसद की रूह है। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहूंगी, whenever the spirit of jealousy comes on a person, और किसी भी शख्स के ऊपर जब हसद की रूह आती है, what he will do? वो क्या करता है? Tell your neighbors, वाले से कहिएगा, he will kill you. वो आपको मार देगा। How? कैसे? Let me explain the word kill. और आए मैं जो कत्ल करना या मार डालने के लफ्ज को मैं बयान करूं। He will shed the blood. और वो खून खून बहाएगा. बहाएगा, He will shed the blood वो खून बहाएगा of you. आपका। Are we together? क्या मेरे साथ है? Hallelujah. हालेलुया। Let's open the book of Genesis. और पैदाइश की किताब में देखते हैं, Book of Genesis, chapter number 4 और उसका 4 बाब and verse number 5. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Yes, please read. और काइन को उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। What happened to Cain? काइन के साथ क्या हुआ है? He got angry और वो नाराज हो गया that God did not accept his offering. क्योंकि खुदा ने उसके हदिया को कबूल नहीं किया। Oh yes. Are you with me? क्या मेरे साथ है? Abel, हाबिल, he gives blood of the lamb. उसने दिया बरा की कुर्बानी, He just give the blood of an animal. और उसने एक जानवर का खून बहाया या जानवर की कुर्बानी दी। Are we together? क्या मेरे साथ है? He gave the blood. और उसने खून बहाया He gave blood. और उसने खून दी। Cain give the blood also. और काइन ने भी खून दिया, Not the animal. लेकिन किसी जानवर का नहीं, He killed the brother. और उसने अपने भाई को मार डाला। Spirit of jealousy. हसद की रूह। Giving देना
You need to understand about giving. Let me और explain. आपको आज समझने की जरूरत है कि देना, The Bible says कलाम कहता है, Abel gave offering through faith. और हाबिल ने अपना हदिया ईमान के साथ दिए, He gave offering through faith. और उसने ईमान के जरिए से अपना हदिया पेश किया। What Bible says about faith? और ईमान के बारे में क्या कहता है कलाम Where मुकद्दस? is our Romans 10, और कितने लोग जानते हैं रोमियो का 10वां 19? और उसकी Faith 19 ईमान Comes by hearing. और सुनना कलाम ईमान से सुनने से सुनने से पैदा होता पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। Faith comes by hearing, and hearing from the word of the Lord. So, which spirit कौन सी Abel रूह heard, जो है वो हाबिल ने सुनी and he gave an offering. और उसने हदिया दिया। So, how the faith comes? फिर वो ईमान कैसे आया? Because the Bible says faith comes by hearing, right? क्योंकि कलाम कहता है कि ईमान आता है सुनने से। It means इसका मतलब है Abel heard someone, और हाबिल ने किसी को सुना था and he gave offering, और उसने हदिया लाया and then he gave an offering. और फिर उसने वो हदिया दिया। Let me correct someone. और मैं किसी की सलाह करना चाहूंगा, Whenever you give an offering, और जब कभी आप कोई हदिया देते हैं do not just put your hand in the pocket and just give anything. कभी भी अपनी जेब में हाथ मत डालें और उसको हदिये को डाल दें Just without thinking. और कुछ भी सोचे बगैर। Before you come to the church, और इससे पहले कि आप चर्च में आए pray दुआ करें and hear from the Lord और खुदा की आवाज को सुने what you need to give to him. और आपको क्या जरूरत है आज उसको देने की। Are you listening to me? क्या मुझे सुन रहे हैं? So Abel heard from the Lord. और जो हाबिल है उसने खुदा से सुना था। Please hear, it's a revelation. Abel heard from the Lord and he gave an offering and God accepted it. और हाबिल ने खुदा से सुना था और उसने अपने हदिया को पेश किया और खुदा ने उस हदिया को मंजूर किया। All offering are not acceptable in the eyes of God. और खुदा की नजर में हर किस्म का हदिया काबिल कबूल नहीं। हर हदिया कबूल नहीं होता। Not all offerings. The offering God accepted. और जो हदिया खुदा कबूल करता है, according to Abel's offering, और हाबिल के हदिया के मुताबिक God already gave him instruction. तो खुदा ने पहले ही उसको हदायत दे दी थी। So he did according to instruction. और उसने उन हदायत पर अमल कर अपना हदिया दिया। And now listen. और अब सुनिए, When Cain entered और जब काइन आया to present his offering, अपने हदिया को पेश करने के he लिए, just take vegetables and he put it on the altar. उसने सिर्फ अपने खेत की सब्जियां फल लाए और उसने उस पर पेश किया। He did not listen the voice. और उसने उस आवाज को नहीं सुना था। That's why God did not accept. इसी वजह से खुदा ने भी उसको कबूल नहीं किया। If you come at my house, अगर आप मेरे घर में आए I already have food और मेरा घर में पहले खाना मौजूद है, and I don't know you, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, and you come with the food, I will not take food from you because I already have it. I didn't tell you to bring the food. और मैं कभी भी वो खुराक आपसे नहीं लूंगा क्योंकि मेरे घर में पहले ही मौजूद है और मैं नहीं जानता आपको, और मैं वो खुराक नहीं लूंगा Because I didn't ask food from you. क्योंकि मैंने आपसे वो खुराक नहीं मांगी थी। That's why if God asks you इसीलिए अगर खुदा आपसे कहे to give this, कि तू मुझे ये दे, then you need to give. फिर आपको जरूरत है कि आप वो दे। So giving is a principle. और देना एक असूल है। But according to the voice, when you hear that faith will comes through hearing, hearing from the word of the Lord. और जब आप देखते हैं, आप ये सुनते हैं कि सुनना मसीह के कलाम से, I am witness. और मैं ये गवाह हूँ, I am witness. और मैं ये गवाह हूँ, Many times 100 दफा Lord spoke to me for giving. और लोग मुझसे बात करते हैं, Lord spoke. खुदा ने मुझसे बात की देने के बारे में, He gave me instructions और उसने मुझे कुछ हदायत दी to give this, कि ये दे to give this. और ये दे, When I see the results. और फिर मैंने उसके नताइज देखे। Now look at this. और अब इसको देखिएगा, Lord spoke to Abel. और खुदा ने बात की हाबिल से, Lord spoke to Abel और खुदा ने बात की हाबिल से to give this. कि ये दे, And he shed the blood. और उसने खून दिया। Now listen. Now Cain is looking at the progress of Abel. और अब देखें कि वो देख रहा है हाबिल के सारे काम को, Success, उसकी कामयाबी को, progress. और उसकी कामयाबी को और बढ़ोतरी को। Now he think in his mind, और वो अपने जहन में सोचने लगा I will kill him. कि मैं इसे मार डालूंगा I will give his blood और मैं अपने खून से मैं पेश करूंगा इसका खून, because God loves blood. क्योंकि खुदा तो खून से मोहब्बत करता है। God did not speak to Cain. लेकिन खुदा ने काइन से कोई बात नहीं की थी। God speak to Abel.
उसने बात की थी Do हाबिल से, not be jealous. कभी भी हसद मत कीजिएगा। God is giving success to someone अगर खुदा किसी को तरक्की दे रहा है तो कभी जेलस मत करें, because God spoke to him and he did it. क्योंकि बात तो खुदा ने हाबिल से की थी और हाबिल ने वो की। If God speaks to you, अगर खुदा आपसे बात करता है you will not be jealous from others. तो फिर आप कभी भी दूसरों से हसद नहीं करेंगे। Are we together? क्या मेरे साथ है? How many people are learning it? कितने लोग सीख रहे हैं? So he killed the और brother. उसने अपने भाई को मार डाला। So verse 5 is saying jealousy. और 5वीं आयत हमें बताती है यहाँ पर हसद के बारे He में, got angry on the brother. और वो अपने भाई पर गजबनाक हुई। So jealousy brings blood. और हसद लेकर आता है खून। So whenever who will be angry on you or he will be jealous from you, और कभी भी कोई आपसे हसद करे he will trying to kill you. वो आपको मारने की कोशिश करेगा। He will trying to put knife in your eyes. वो आपको छुरी से मारने की कोशिश आपकी करेगा, आंखों में भी छुरियां मारेगा because he don't like your eyes. क्योंकि वो आपकी आंखों को पसंद नहीं करता। He will kill your back वो आपके पीछे मारने की वार करने की कोशिश करेगा, because he don't like you. क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता। Why? क्यों? Spirit of jealousy. हसद की रूह। So when brother jealous from a brother, so और I जब- started from husband and wife. और Now we are learning brother to brother. और मैंने शुरुआत की थी मियाँ और बीवी से, अब बात आ गई भाई की भाई से। So brother is jealous from a brother. भाई भाई से हसद कर रहा है, He did not speak to him. लेकिन उससे बात नहीं की। Yes, he speaks in conversation, और उन्होंने कुछ आपस में बातचीत की, but the jealousy taken to that level to kill his own brother. हसद की रूह जो है वो काइन को इस मुकाम पर लेगी कि वो अपने भाई को कत्ल कर डाले। Yes. So the killing comes with the result of jealousy. और हसद के इख्तिताम हमेशा कत्ल करने पर आता है या Are you मार with डालने me, पर। my क्या dear? मेरे साथ है मेरे Let प्यारों? God deliver you. खुदावंद आपको इस रूह से रहाई बख्शे। The day you are jealous from someone, और उस दिन जिस दिन आप किसी से हसद करेंगे you will try to kill him. और आप उसे मारने की कोशिश करेंगे You will try to destroy him. और आप उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे। Oh yes. Are you with me? क्या मेरे साथ है? Are you with me? क्या मेरे साथ है? Hallelujah. Look at me. हालेलुया। Look at me. Are you with me? Yes. How many people experience this in your that? Everybody experience. लोग हैं जिन्होंने इस बात का तजर्बा किया है Yes. They are also victim. Yes. और वो भी सब भी गवाह है, वो भी हिस्सा रहे हैं इस बदरू का. Yes. Or might be now. और हो सकता है अभी भी हो, They are jealous from someone. वो किसी से भी हसद करे हो। Do not. कभी भी मत करें, Do not कभी ना करें। compare your wife. और अपनी बीवी का किसी दूसरे से मुकाबला ना Do करें, not compare your wife with others' wife. और दूसरों की बीवियों के साथ अपनी बीवी का मुकाबला ना करें। The day you will put in competition, और जिस दिन आपने ये मुकाबला शुरू किया then you will be jealous from others' marriage. और आप फिर दूसरों की शादीशुदा जिंदगी से हसद कर रहे हैं, And what you two people will do? और फिर आप ये दोनों क्या करेंगे? You people will destroy their marriage. और आप उनकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करेंगे। Oh Lord. ओ मेरे खुदा, Oh Lord. ओ मेरे खुदा, Deliver this kind of people. और इस किस्म के लोगों को रहाई बख्श। Are you with me? क्या मेरे साथ है? So now brother kill a brother. और भाई ने भाई को मार डाला, What is the reason? और उसकी वजह क्या थी? की वजह से. Jealousy. Hello. Jealousy. Huh? Jealousy. Do not think ये मत सोचे who is killing you. कौन आपको मार रहा है, Think ये सोचे which spirit is assisting that person और कौन सी रूह है जो उस शख्स को उभार रही है इस काम के लिए to kill you. कि आपको मारे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? Now listen, my dear. और अब मेरे प्यारों सुनिएगा, Now listen. सुनिएगा। Open the book of Genesis 37. और पैदाइश उसका 37 बाप हम खोलेंगे, Now be attentive. और अब ध्यान से देखिएगा, Now be attentive. अब ध्यान से सुनिएगा। Now be attentive. Be attentive. From this step, you need to understand very carefully और अब इस स्टेप से आपको समझने की जरूरत है, because this point will be give you a revelation. Walk in life. और आपने जिंदगी में कैसे चलना है इस बात का मुकाशफा ये पॉइंट आपको देने वाला है, How to deal with this kind of people. और इस किस्म से के लोगों से कैसे निपटना है। Genesis 37 और पैदाइश उसका 37 बाप and verse number 5. और उसकी 5 आयत। And Joseph dreamed. और यूसुफ ने ख्वाब में देखा, Oh, yes. And Joseph dreamed a dream. ख्वाब में देखा, And he told it his brethren. उसने अपने ही भाइयों को बताया, And they hated him yet the more. और वो उससे भी बुग़्ज़ रखने लगे। Now listen. सुनिए,
Tell your neighbor, साथ वाले से कहिए, I know you have dream. मैं जानता हूँ तुझे ख्वाब आते हैं, मैं जानता हूँ तेरा ख्वाब है. मैं जानता हूँ तेरा ख्वाब है, I know you have dream. और मैं जानता हूँ तेरा ख्वाब है. Don't share with anyone. किसी के साथ इसको मत बांट. Now listen here. और अब सुने, Brother, एक भाई, he shared और उसने बांटा अपना a ख्वाब, dream. अपना ख्वाब. With what? किसके साथ? Oh, sorry. With who? किन के साथ? With brothers. अपने ही भाइयों के साथ. Joseph, let me give you a small introduction. और मैं आपको एक सादा सा तारुफ पेश करूंगा. Joseph यूसुफ was a brother. वो एक भाई था, Joseph was a brother और यूसुफ एक भाई था of 11 brothers. 11 भाइयों का. Now listen. सुनिएगा, The Bible says कलाम कहता है he was different. वो उनसे मुख्तलिफ था, Yes, he was different. वो उनसे मुख्तलिफ था. His father उसका बाप gave ने उसको दी, him a special coat. उसको एक खास किस्म का मुख्तलिफ रंगों का उसको एक कोट दिया था. Now, let me address some fathers here. और मैं कई बाप हैं जितने जो बाप यहाँ बैठे मैं उनसे मुखातिब हूँ, सलाह करना चाहूंगा. मैं उनकी इस्लाह करना चाहूंगा. Do not कभी भी मत करें take one children एक बच्चे के लिए as a special one. कि उसको आप खास बना दें. No. कभी भी ऐसा मत करें. The moment you take the Joseph very special, और वो लम्हा जब उसने उसको बहुत खास बनाया, the moment you take Joseph very special, और वो लम्हा जब यूसुफ को बहुत खास बनाया गया, what will happen? फिर क्या हुआ? What will happen? क्या हुआ? The other children will fight with that kid. और उस बच्चे के साथ दूसरे बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं. That it's mean the father is giving the access to spirit of jealousy to come in other children. और इसका मतलब है कि बाप खुद उभार रहा है हसद की रूह को कि वो आए और दूसरे बच्चों में काम करे उस बच्चे के खिलाफ. Are you listening me? क्या मुझे सुन रहे हैं? Here happens also. और यहाँ पर भी यही हो रहा है. Here happens also. और यहाँ पर भी यही हो रहा है. A father loved one और बाप का रहा है प्यार एक से, that called Joseph. जिसे कहते हैं यूसुफ. A very good cloth. और of बहुत many colors. खूबसूरत, बहुत से रंगों वाला एक उसको कोट बना कर दिया. Now he had a dream. और अब उसको एक ख्वाब आया. Look at this. Tell me, Jesus comes from which tribe? और मुझे बताइएगा कि यीशु मसीह किस कबीले से थे? Huh? Tell me quickly. Oh yes. Now listen. अब सुनिएगा, Who was Judah? और कौन था यहूदा? Who was the father of Judah? और बाप कौन था यहूदा का? Quickly tell me. Huh? Oh yes. Confidential. Yes. Who is the father of Judah? Huh? Yes. Who is the father of Joseph? और यूसुफ का बाप कौन था? So two people, दो लोग, two brothers, दो भाई, the same father. एक ही बाप. Joseph लेकिन यूसुफ is the son of Jacob, और वो है याकूब का बेटा, and और Judah is the son of Jacob, same और father. यहूदा भी बेटा है याकूब का. Here is the case. और ये है केस. Jacob, और जो याकूब है, he is giving the prophecy about Jesus. और यीशु मसीह से मुतालिक वो नबूवत कर रहा है. Judah, और यहूदा, from you, आप में से Messiah will come. के मसीह आएगा. But he loved Joseph. लेकिन वो मोहब्बत रखता है यूसुफ से. He knew वो जानता है Messiah will come from this son, कि वो यीशु मसीह इस बेटे की नस्ल से आएगा. but he still loved Joseph. लेकिन फिर भी वो यूसुफ से मोहब्बत कर रहा है. Tell your neighbor, अपने साथ वाले से कहिए. parents need to be equal. और माँ बाप को चाहिए कि वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे. Why the 11 are gathered now? और क्यों अब 11 इकट्ठे हो गए? Sorry, because Benjamin was small. So now listen. The brothers gathered, और अब The भाई elder इकट्ठे ones. हो गए, और जो बड़े थे वो इकट्ठे हो गए, and now they are slapping him, और वो उसको अब थप्पड़ मारे हैं, they're beating him. और वो उसको मारे हैं. Why? क्यों? Mostly people who are beating you today, और बहुत से लोग जो आज आपको मार रहे हैं, you shared your dream with them. आपने अपना ख्वाब उनके साथ बांटा है, That's why they are beating you. इसीलिए वो आपको मार रहे हैं. Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? The very moment Joseph shared a dream, और किसी लम्हे में उसने अपना ख्वाब अपने भाइयों से बांटा, the moment, और वो लम्हा
Joseph यूसुफ ने shared the dream. उसने हाथ बांटा And the very moment और उस लम्हे में he is receiving the slaps. और उसी लम्हे में उसको थप्पड़ पड़े। What is this? क्या है ये? Jealousy. ये है हसद। Now fame is dangerous. और अब मशहूर होना खतरनाक है। Fame is dangerous. और मशहूर होना खतरनाक है। Fame is dangerous. मशहूर होना खतरनाक है। If go to a crowd of the church. और अगर बहुत ज्यादा चर्च में भीड़ हो, चर्च के क्राउड में जाएं, go to the crowd of the church. अगर चर्च के भीड़ में जाए And announce और ये आप ऐलान करें that so pastor is coming. कि ये पास्टर आ रहा है, And the church will shout, right? और चर्च जो है वो चिल्लाना शुरू कर दे, And you know that pastor, और आप उस पास्टर को जानते हो, that everybody knows him और through his famous, और because उसके मशहूर होने की वजह से सब लोग उसे जानते हैं that pastor is coming. कि ये पास्टर आ रहा। Now announce that pastor, nobody knows him. अब ऐसे पास्टर का नाम ले जिसे कोई नहीं जानता, And then you announce his name in the church. और फिर आप उसका नाम का ऐलान करें चर्च के अंदर, People don't shout लोग कभी भी शोर नहीं because मचाएंगे he is not famous. क्योंकि वो मशहूर नहीं है। Are you with me? क्या मेरे साथ है? So now fame और अब मशहूर होना brings jealousy. हसद को लेकर आता है। How many people want to be famous? और कितने लोग हैं जो मशहूर होना चाहते हैं, Everybody knows them. और हर कोई उनको जाने। Those pastors who will listen this message now, or listening my message now, or listen later. और जितने भी पास्टर हजरात भी लाइव मेरा मैसेज सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, Please listen. एहतियात से सुनिए। Respectfully saying, और मैं बहुत को एहतराम के साथ कह रहा हूँ, everybody has a time. और हर एक का वक्त होता है, Do not fight with those who are God is raising them. और जिनको खुदा ने खड़ा किया हुआ है उनके साथ जिनको मत, खुदा बढ़ा रहा है उनसे लड़े मत. Do not fight. उनके साथ मत लड़े, Do not be jealous of them. और उनसे हसद मत करें। What is this? ये क्या है? Everybody has a time and season. और हर एक का एक मौसम और एक वक्त आता है, Everybody has a time and season. और हर एक का एक मौसम और वक्त आता है। Do not be jealous of one who is increasing in days. और वो किसी भी चीज में अगर कोई बढ़ रहा है तो कभी उसके साथ हसद मत करें, Because क्योंकि you are looking his fame. और आप देख रहे हैं उसका मशहूर होना। Yes. Why you are not focusing on your own fame? क्यों आप अपने मशहूर होने पर फोकस नहीं कर रहे? The thing is not fame. Fame is dangerous. और मशहूर होना खतरनाक है, मशहूर होना चीज नहीं है। Fame will take you in danger zone. और आपका मशहूर होना आपको डेंजर जोन के अंदर लेकर खतरे के एक मुकाम पर लेकर आए, You will get unknown enemies. और आपके दुश्मन ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे। Many people you will see in the job places, they are famous और आप बहुत से लोग देखेंगे जॉब पर जो बहुत मशहूर होंगे, in job places, और जॉब वाली जगहों पर, in schools, स्कूल में, in school. स्कूल के अंदर, One student will be famous और एक जो तालिब इल्म है वो मशहूर हो जाता है in the class. अपनी क्लास में। Why? क्यों? Every teacher is talking about that, और उस हर एक टीचर उसके बारे में बात करती है, not others. दूसरे नहीं। How the other children will feel. फिर दूसरे जितने भी तालिब इल्म है वो क्या महसूस करें। Let me talk to children. और आए मैं बच्चों से बात करती हूँ, If you are in the class और अगर आप क्लास में हो and you have other children और दूसरे बच्चे भी हो sitting with you and studying with you, और आपके साथ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, and the children told John, let's pause. और आए हम इस बात को हम पॉज करते हैं कि एक बच्चा जॉन है Every teacher likes him. और हर कोई उसको पसंद करता है, How you will feel? तो फिर आपको कैसा महसूस होगा? They don't like, they don't pay attention that much to you, they pay attention more to the other student because he's like better in studies and he's a good student In their side. teaches them. See, so now he get the point. In the eyes of teacher, और उस्ताद की नजर में John is a good student. जॉन एक अच्छा तालिब इल्म है, How he feels it. और कैसे वो महसूस कर रहा है, Which thing give him this information? और किस चीज ने इसको ये मालूमात दी? The spirit of jealousy. और हसद की रूह ने। The reason was the teacher. और उसका वजह है उस्ताद। Only appreciating one. और सिर्फ एक की तारीफ करना। Hello?
Joseph was the result of the love of the father. और बाप की मोहब्बत का नतीजा था यूसुफ, He just loved him. और वो सिर्फ उससे प्यार करता था। Tell your neighbor, साथ वाले से कहिए, you need to be equal. और तुझे जरूरत है कि एक जैसा काम करे, You need to be equal. और आपको जरूरत है कि एक जैसा प्यार करे। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ। When you are not equal in loving your children, और आप जब अपने बच्चों को प्यार करने में एक जैसा नहीं करते, you will invite the spirit of jealousy in your house to other children. और आप दूसरे बच्चों के लिए हसद की रूह को दावत दे रहे हैं कि वो आपके घर में। Those who are leaders of the church, और जितने चर्च के लीडर हैं, remove favoritism. और आप पसंदगीदगी को खत्म करें। If you are walking in a favoritism, you will kill others' blood. और आप दूसरों के खून को मार रहे हैं अगर आप पसंदीदगी को रखते हैं। Many churches I see in my और life, बहुत से चर्चेज मैंने अपनी जिंदगी में देखे, family churches, और फैमिलियों के चर्च है. फैमिलीज के Only you चर्च, will see families, और जिसमें सिर्फ खानदान के खानदान काम कर रहे हैं, only families, सिर्फ खानदान, because of jealousy. और सिर्फ हसद की वजह से। If a good person comes in from the congregation, the family will fight. और अगर कोई बाहर से कोई शख्स आता है तो फिर वो उसके साथ झगड़ा करते हैं। Another thing, और दूसरी चीज, favoritism, और उसमें पसंदीदगी, favoritism. और उसमें पसंदीदगी, This is called jealousy. और इसको हम कहेंगे हसद, It will bring jealousy. Yes. और वो लेके आता है हसद को। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Are you learning? क्या आप सीख रहे हैं? Fame is dangerous. और आपका मशहूर होना खतरनाक है। So that's why I am slow. इसी वजह से बहुत आहिस्ता, I did much. और मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, I did much. मैंने किया था. मैंने किया था, But when I get the revelation, लेकिन जब मुझे मुकाशफा मिला, I hide many things. और मैंने बहुत सी चीजों को छुपाया। Fame is dangerous, my dear. और मेरे प्यारों, मशहूर होना खतरनाक है, You will get unknown enemies without reason. और बगैर किसी वजह के आप ऐसे दुश्मन होंगे जिनको आप नहीं जानते। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Couple of days before, 2 दिन पहले की बात है, I saw मैंने a news देखा एक खबर that a very young doctor, कि एक बहुत जवान डॉक्टर लड़की, a guy, एक शख्स ने, raped her and killed. और उसने उसका रेप किया और उसे मार डाला। When I see with my own eyes, और जब मैंने अपनी आंखों से देखा, she was famous और वो बहुत मशहूर थी, in beauty, वो खूबसूरती में good language, और जुबान में, top student, intelligent. और बहुत ज्यादा ज़हीन और एक अच्छे तालिब इल्मों में उसका शुमार होता था। Do not show your good qualities to everybody. हर एक शख्स पर अपनी अच्छी काबिलियत जाहिर मत Try to hide yourself. और कोशिश करें अपने आप को छुपा कर रखने की। I think I'm talking to someone here. और मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, Are you listening to me? क्या मुझे सुन रहे हैं? Try to hide your life. और कोशिश करें अपनी जिंदगी को छुपाने की। So Joseph shared a dream. और उसने बांटा ख्वाब। Let me give you wisdom. और मैं आपको यहाँ पर हिकमत देना चाहूँ। Whenever you want to grow, जब कभी आप बढ़ना चाहें, do not share the exact situation of your life to others. और कभी भी अपनी जो जिंदगी की सही बात है वो कभी भी दूसरों को मत बताएं। I asked one great man of God, what is your secret? और मैंने एक बहुत अजीम मर्द खुदा से पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? How you deal with this kind of spirit? आप इस किस्म की रूहों के साथ कैसे निपटते हैं? He answered me. और उसने मुझे जवाब दिया। He said, whenever someone called me and talked to me, और जब कोई मुझे बुलाता है और मुझसे बात करता है, I always says, और मैं हमेशा कहता हूँ, what the highest challenges I was facing in my life, I shared those challenges with him. और मैंने जितने भी मेरी जिंदगी में मुझे चैलेंजेस का सामना हुआ है, मैंने उसको बताया है। He don't share the good part. और उसने अच्छी चीजें कभी नहीं बताई। He always shared what the challenges he was facing. He shared with them. उसने सारी वो चीजें बताई जिनके जो मुश्किलात उसकी जिंदगी में से So that the person will get information where you are struggling. और उस शख्स को सिर्फ वही मालूमात मिली कि तुम किन मुश्किलात से गुजर रहे हो। But you people, लेकिन आप लोग, you always try to share, I buy a new car. Look at this status, WhatsApp, Facebook. और जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हैं या कार खरीदते हैं तो आप हर एक जगह पर स्टेटस लगाते हैं और लोगों को बताते हैं। Whenever your children did something, you always put on media, oh, let me get the spirit of jealousy.
और आपने आपके बच्चे अगर कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो आप फौरन सोशल मीडिया पे डालते हैं You- ताकि आप इनवाइट करते हैं हसद की रूह को, You always invite. और आप हमेशा खुशामदीद कहते हैं हसद की रूह को। Whenever you always share your good dreams. और जब आप अच्छे अपने ख्वाब बांटते हैं किसी से, This is wisdom, my dear. और ये है हिकमत मेरे प्यार। Always tell challenges to people. और लोगों को सिर्फ अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों के बारे में बताएं। Always tell good things those people who are ahead of you. और जितने लोग आपको सुनकर खुश होते हैं, सिर्फ अपनी अच्छी चीजें उनसे बांटें। Always share these things those people who are ahead, जो आपसे आगे हैं, आगे who are ahead of you. Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या मेरे साथ है? How many people they are now reminding their past? और कितने लोग हैं जो अपने माजी में की हुई चीजों को याद कर रहे हैं? The moment you share और जिस वक्त आपने बताया था that I got this job, कि मुझे ये नौकरी मिल गई, that very moment उसी वक्त you went there और आप वहां पर गए and they said, और उन्होंने कहा sorry, कि माजरत, we were agree. हम इस बात पे मुत्तफिक हैं, We were agree we were agree to हम give you, हम इस बात पे मुत्तफिक थे कि आपको दें, but we find better from you. लेकिन आपसे बेहतर हमें मिल गया। No, are you with me? क्या मेरे साथ है? How many people are learning it? कितने लोग सीख रहे हैं? Spirit of jealousy. हसद की रूह। Everyone has a time. और हर एक शख्स का एक वक्त है, Wait for your time. और अपने वक्त का इंतजार करें, Wait for your time. अपने वक्त का इंतजार करें। You are thinking that I am giving this wisdom from myself. और क्या आप सोच रहे हैं कि ये हिकमत मैं अपने लिए दे रहा हूँ, मैं आपसे दे रहा हूँ. मैं आपसे दे रहा हूँ, No. किससे दे रहा हूँ? Let me teach you from the life of Lord Jesus Christ. और आए मैं आपको तालीम दूं यीशु मसीह की जिंदगी से। He was just enjoying with the disciples. और वो सिर्फ वहां पर एंजॉय कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, Like a marriage enjoyment. और शादी की शादी की enjoy. ज़ियाफत पे वो In एंजॉय कर Cana. रहे थे। काना के अंदर. काना के अंदर थी जो। Are you listening me? क्या मुझे सुन रहे हैं? Now listen. अब सुनिएगा, What happens there? वहां पर क्या हुआ? What happens there? वहां पर क्या हुआ? Mother came माँ आई, and talked to Jesus. उसने बात की यीशु से, Son, मेरे बेटे, can you please do the miracle? कि मेरे लिए क्या तू मौजज़ा करेगा? What he said? उसने क्या कहा? My time has not come yet. मेरा वक्त अभी नहीं आया। What does it mean? उसका मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब क्या He है? do not want to raise enemies before time. और वो वक्त से पहले अपने दुश्मन नहीं बनाना He चाहता, do not want enemies before time. और वो वक्त से पहले दुश्मन नहीं बनाना चाहता, He do not want enemies from before time. वक्त से पहले वो दुश्मन नहीं बनाना चाहता। Please get that. क्या आपको समझ आई? Learn this principle from Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह की जिंदगी से आप इस असूल को सीखें, Learn it, my dear. और मेरे प्यारों सीखो। Spirit of jealousy will make more stones in your ways. और जो हसद की रूह है वो आपके रास्ते में और ज्यादा पत्थर बिछाएगी। So I am giving you the wisdom. और मैं आपको यहाँ हिकमत देना चाहूँ, Wisdom. हिकमत देना चाहूँ। What are the signs? और इसके निशान क्या है? What are the signs और इसके निशान क्या of spirit of jealousy? है? हसद की रूह के निशान क्या है? Now write down the signs of the spirit of jealousy. हसद की रूह के निशान क्या The है? first sign, और उसका पहला निशान, ungratefulness. और Ungratefulness. Na shukre. नाशुक्रे होना। Na maya talaba. Oh Lord, ओ मेरे खुदा, deliver my mind. और मेरे जहन को इस बात से आजाद कर, Let me be grateful to you. और मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ हमेशा। Sign. पहला निशान, The first sign. पहला निशान, The first sign in life. और जिंदगी में पहला निशान। Whenever you sit with people और जब कभी आप लोगों के साथ बैठे who are not grateful, और जो नाशुक्रे हैं, who are ungrateful, yes, वो जो नाशुक्रे लोग हैं उनके साथ बैठेंगे mark them. और फिर उन पर निशान लगाएं। They are people of jealousy. और वो लोग हैं जो हसद करते हैं। No. Point number 1. और पहला पॉइंट, The people who are ungrateful. और वो लोग जो नाशुक्रे हैं, The people who are ungrateful. What God has done for their life. और खुदा ने क्या किया है उनकी जिंदगी। Hallelujah. हालेलुया। How many people listen this parable in the book of Matthew? The talents.
और मत्ती की अंजील में कितने लोगों ने जो है वो तफसीर पढ़ी है उसकी पढ़ी। अ, तोड़े तोड़े talents, 5 talents, और 5 तोड़े, 2 talents, 2 तोड़े and 1 talent. और 1 तोड़ा So God खुदा ने gave, दिए or a master, और मालिक को or a master, या मालिक को मालिक ने, मालिक ने or a master या मालिक ने give दिए talents और तोड़े according to capacity. और उनकी कैपेसिटी के मुताबिक या जितनी जगह वो रख सकते हैं। 5 talent to 1, एक को 5 and he made it 10. और उसने 10 बना दिए 2, and he made it 4. और 2 दिए जिसने 4 बना दिए 1, और सिर्फ 1 दिया remain 1. और 1 ही रहा Ungratefulness. और उसकी नाशुक्री Look at his life. और उसकी जिंदगी को देखे He have 1. और उसके पास 1 है। He did not make 1 from 10. No. उसने 1 उसने 1 को 10 नहीं किया. किया। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Anamashi akatalaba. Let me explain. और मैं इसकी वजाहत Let me करूंगा। explain. मैं इसकी वजाहत करूंगा। 1 talent. 1 तोड़ा He even did not make 2. हत्ता कि वो 2 भी नहीं बना सका। Ungratefulness. उसकी नाशुक्री। Oh Lord, वो मेरे खुदा give them grace और ये फजल बख्श to be grateful. कि हम तेरा शुक्र करते रहें। Judah did not see और यहूदा ने नहीं देखा that Christ is coming from my house, कि मेरे घर से आ रहा है यीशु मसीह but he is beating a small baby. और उसने एक बच्चे को मारा The very moment you don't know what you have, और उस लम्हे में आप नहीं जानते कि आपके पास कितना है then you are jealous. तो फिर आप हसद करते हैं। When a person jealous from other, the reason is one. और जब कोई शख्स दूसरे से हसद करता है उसकी वजह एक है। Let me explain. मैं इसको बयान करूंगा। When your eyes जब आपकी आंखें is on another's blessing और जब दूसरे की बरकत पर टिकी होती है आपकी and you आंखें, don't know your own big blessing above him, उससे आपकी बड़ी बरकत को नहीं देख सकते that is called the spirit of jealousy और blinding you. ये आपको अंध कर देती है हसद की रूह कि आपके पास अपनी कौन सी बरकतें मौजूद है। Did you get it? क्या आपको समझ आ रही? Only सिर्फ every power, हर एक ताकत, every grace, हर एक फजल, every blessing, हर एक बरकत the giver of all और सबका देने वाला is God. वो है खुदा He don't like jealousy. और वो पसंद नहीं करता हसद को। He don't like jealousy. और उसको हसद पसंद नहीं है। I am not jealous of anyone. मैं किसी से हसद नहीं करता I am the best version of my life. और मैं अपनी जिंदगी का बेस्ट हूँ। I am the best part. God created me like this. What I am, I खुदा am. ने मुझे जो बनाया है मैं वही हूँ जो उसने मुझे बनाया। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? One of the preacher, एक तालीम देने वाला, मनाती करने वाला, I was talking to him couple of weeks ago, कुछ 2 हफ्ते पहले मैं उससे बात कर रहा था and he asked me, और उसने मुझे कहा why you preach or teach them openly? और क्यों आप इतने खुले तौर पर तालीम देते हो, Why मनाती you करते हो give them people without testing them? और आप लोगों का टेस्ट किए बगैर कैसे उन्हें तालीम दे सकते हो? Why you test before test? Why you just give them? और क्यों आप टेस्ट किसी तरह का भी टेस्ट लिए बगैर लोगों को देना शुरू Why कर you देते? share the good news? Why? क्यों एक अच्छी तालीम आप लोगों को दे रहे हैं Why ऐसे you are sharing without testing their lives? और आप आप उनको टेस्ट किए बगैर कैसे ये तालीम उनको दे सकते हैं? One day, एक दिन me as a person, मैं एक जाती तौर पर many years ago, बहुत साल पहले I was not like this. मैं ऐसा नहीं था I always hide my information in me. और मैं अपनी तमाम मालूमात अपने अंदर छुपा के रखता था If I have 100%, और अगर मेरे पास 100% होती I थी will share with you 0.5. सिर्फ मैं 0.5 आपको देता था। Now why? क्यों अब? One day I was in prayer and the Lord spoke to me. और एक दिन मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने मुझसे बात की And he asked me, Daniel, my son, और उसने मुझे कहा दानियल मेरे बेटे Daniel, my son, और दानियल मेरे बेटे how much work you want to do? और कितना काम तू करना चाहता है? I just said, Lord, I want to win many. और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सी रूहों को जीतूं I want many. और बहुत सी रूहों को जीतूं I want to be light for many. और मैं बहुत सी जिंदगियों के लिए रोशनी बनूं। And he said, you can't. और उसने कहा तू नहीं कर सकता। Very
Weird question. और ये बहुत ही परेशान करने वाला सवाल। And I asked the Lord why. और मैंने खुदा से कहा क्यों? He said, you can't win all. और उसने कहा कि तू सबको नहीं जीत सकता, Give what you have और दे दे जो तेरे पास है। to many. बहुत से लोगों को They will win more. वो जाकर औरों को जीत लेंगे। He said, I give to 11. और मैंने 11 को दिया था, उसने कहा, And then 11 give to 120. और फिर 11 ने दिया 120 को, And 120 give to 3,000. और 120 ने दिया 3000 को। And now on the world, only one name is above all God, that is Jesus. और तमाम नामों से ऊपर एक नाम है जो है यीशु नाम। Are you listening me? क्या मुझे सुन रहे हैं? I can't win all the world. और मैं पूरी दुनिया को तो जीत नहीं सकती। That's why I don't jealous from people who are इसी वजह से मैं लोगों से हसद नहीं करता जो अच्छा करे हैं। our neighbor countries. They are doing great work. और हमारे जितने हमसाया मुल्क है वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। Our if you are seeing greatness in southern men of God, और आप कुछ खास किस्म के मर्द खुदा में अगर आप देखेंगे कितने अजीम है वो, he is doing great work. बहुत अच्छा काम कर Why रहे हैं। you are jealous? क्यों आप हसद करते हो? He is doing the same thing what you want to do. और वो वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। Just see सिर्फ आप देखें and be grateful to the God that और खुदावंद का शुक्र someone करें did कि it. खुदा ने किसी को तो उठाया कि वो ये काम कर रहा है, Someone did it. तो कोई तो ये कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। When you are ungrateful, और जब आप नाशुक्रे होते हो you are jealous. तो फिर इसका मतलब है आप हसद में When हो। you are ungrateful, और जब आप नाशुक्रे होते हो you are jealous. हसद में। Hallelujah. हालेलुया। How many people are learning? इतने लोग सीख रहे हैं। There's another spirit called critical spirit. एक और रूह है जिसको हम कहेंगे Chidaru. पचीदा रूह। The critical spirit is you can say sister of jealousy or a brother of jealousy. आप कह सकते हैं कि जो पचीदा रूह है वो हसद की बहन है या हसद का भाई है। Are you with me? क्या मेरे साथ है? I'm not going to the scriptures. Let me go straight to the point. और मैं हवाला जात में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा पॉइंट बताता हूँ। When you are more critical, और जब आप ज्यादा पचीदा होते हैं, yes, he is a good preacher. तो हाँ ये तो बहुत अच्छा मुनादी करने वाला है, तालीम। Yes, Pastor Daniel is a good preacher. और पास्टर डैनियल बहुत अच्छे प्रीचर हैं। But I don't like he preach in English. और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो इंग्लिश में प्रीच करते हैं। But his color is black. उनका रंग काला है But his style is not good. और उनका स्टाइल भी अच्छा नहीं है। What is this? ये क्या है? Critical spirit. और ये है पचीदा Yes, रूह। the church is good, और चर्च तो अच्छा है but the people are not good. लेकिन लोग अच्छे नहीं है। Where are you? आप कहाँ पर हो? In another way you are saying good. In another way you are saying एक bad. दफा आप कह रहे हो ठीक है, एक दफा आप कह रहे हो नहीं ठीक। Are you with me? क्या मेरे साथ है? This is the spirit comparing yourself with others. और अपने आप का दूसरों के साथ मुआजना करना, Comparing, और अपने आप का मुआजना दूसरों के साथ करना, comparing yourself. और अपने आप का मुआजना दूसरों The के day you start comparing churches with churches, और जिस दिन आपने चर्च का मुआजना चर्च से शुरू कर दिया, you will get the jealousy, और information from the spirit of jealousy. और आपको हसद की रूह आप पर आ जाएगी। And the critical spirit will come first before jealousy. और हसद से पहले पचीदगी की रूह आपके अंदर आएगी। Did you ever said to someone, this is good, God bless you? और क्या आपने इससे पहले कभी किसी को कहा है कि ये अच्छा है, खुदावंद आपको बरकत दे? As God said, it is good. और जैसे खुदा ने कहा अच्छा है, The moment you're trying to figure out the 1% of negative things, और जब आपने इस चीज को जान लिया कि आपने 1% भी, जिस वक्त आपने किसी में 1% मनफी चीज ढूंढने की कोशिश की, negative, the critical spirit is there. और फिर पचीदगी की रूह मौजूद है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 90% ਸਹੀ ਹੈ या 1% नहीं सही, बस सब कुछ ठीक है चर्च से, मगर पादरी बोलदा सही नहीं है, पास्टर गुस्से वाला है, असा ਤਾਂ चर्च छड़ ਦਿੱਤਾ। सब कुछ ठीक है, just one thing. एक चीज, Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. हालेलुया। Critical spirit is a brother or a sister of jealousy. और जो पचीदगी की रूह है वो बहन या भाई है हसद का। Do not be more critical, please. और ज्यादा पचीदा मत बने, मेहरबानी कीजिएगा। Ignore the bad thing from your children. अपने बच्चों की जो बुरी चीजें हैं उनको इग्नोर करें। Pastor, my son is good in my son, but he's very shy. Hey, why are you mentioning this?
और आप कह रहे होंगे कि पास्टर मेरे बच्चे में ये सारी चीजें अच्छी है, लेकिन वो बच्चा मेरा क्या है, और शर्मिला शर्मीला है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Try to figure और कोशिश करें जांचने की the uniqueness of a person. और उस शख्स की कोई खास चीज Uniqueness. और उसकी अलग चीज या खास चीज। Look at your hands now. अपने हाथों को देखिएगा, Look at your hands. हाथों को देखें। Do you have fingerprints? आपके क्या इसके निशान हैं? You know the world said all fingerprints of the human being are same. Yes, लोग कहते हैं कि तमाम के जो हाथों पे निशान है या लकीरें हैं वो एक जैसी हैं। right? No, why? This is the point. If the fingerprints don't match, अगर आपके निशानात हाथों के एक जैसे नहीं है, how you can say the person will be the same? कैसे दो शख्स एक जैसे हो सकते हैं? No. नहीं। God created people in their own uniqueness. और खुदा ने हर शख्स को उसकी खास चीजों के साथ अलग बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Do not be jealous of someone किसी से भी हसद मत करें that you are not able to preach. कि आप इस काबिल नहीं है कि आप मनाती करें You are not able to deliver people. और आप इस काबिल नहीं है कि आप रहाई दें। Do not be like this. इस तरह के मत बने। Focus on your own uniqueness. अपनी खासियत पर जो अलग चीज खुदा ने आपको बख्शी है उस पर अपनी नजर करें। That's why God placed in the church 5 kinds of ministries: इसलिए खुदा ने 5 तरह की मिनिस्ट्रीज रखी हैं। apostle, prophet, teacher, रसूल, नबी, evangelist, उस्ताद and pastor. और So पास्टर। that they cannot be jealous from each other. इसीलिए कि एक दूसरे से हसद मत करें। I saw pastor jealous from pastor. Yes, I saw. मैंने देखा है कि एक पास्टर दूसरे से जेलस करता है, But I don't see apostle don't like apostle. They और like लेकिन each other. मैंने नहीं देखा कि एक रसूल दूसरे रसूल के साथ हसद करता है। No, नहीं देखा, they understand ministry. क्योंकि वो मिनिस्ट्री को समझते हैं। When you understand others' greatness, और जब आप दूसरों की अजमत को समझ जाएंगे others' uniqueness, और उनकी अलग हासियत को समझ जाएंगे their capacity and their great things, और उनकी अजीम चीजें और उनके काम करने की सलाहियतों को समझ जाएंगे, you will not be critical. तो कभी भी आप पचीदा नहीं रहेंगे, You will not be critical. कभी पचीदा नहीं। Why something? Why you are emotional? और छोटी छोटी चीजों से क्यों आप इतने इमोशनल हो जाते Why you are so critical? हैं और क्यों आप इतने पचीदा हो जाते हैं? And that's you are inviting the spirit of jealousy. फिर आप इनवाइट कर रहे हैं हसद की रूह को। Another brother और एक दूसरा भाई of the jealousy is और me. वो भी हसद का है, वो भी यहाँ पर है। Can I tell you or not? क्या मैं आपको बताऊं या नहीं? Those who are watching me live, can I tell और you or not? जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, क्या मैं आपको बताऊं? You want क्या आप चाहते to हो? listen क्या आप सुनना चाहते हो? another sister or a brother of jealousy? और बहन या भाई हसद का एक और। Tell your neighbor evil unity. और कहिएगा कि मनफी इत्तेफाक, शरीरों का इत्तेफाक. शरीरों का इत्तेफाक, Demons बदरू है or spirits, या रूह है, they walk with each other. वो एक दूसरे के साथ चलती फिरती है Evil spirit, they walk with each other with connection. Hello. और वो अपने कनेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ राब्ते में है। Now the critical spirit is walking on the street number 45, अब जो पचीदगी की रूह है वो 45वीं गली में जा रही होगी and he saw the person with jealousy. He called, "Hey, jealousy, come here." The और person, वो कॉल करेगी और वो कॉल करेगी हसद की रूह को के हसद की रूह मेरे पास आ, "Please come here, come here. I find a client for you." और मैंने तेरे लिए एक बंदा ढूंढ लिया है। Yes, yes. Now there is a brother called. Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं, उसका एक भाई Spirit of competitive. और वो होगा आपका मुकाबलेबाजी। मुकाबल। Hey, this is another sister or a brother. और ये एक और बहन भाई आया। When you try to compete with your brother or sister, जब आप कोशिश करेंगे अब मुकाबला करने की अपने ही भाई या बहन से, when you try to compete और जब आप कोशिश करेंगे अपने ही भाई या बहन से, with your brother or sister, नहीं या बहन या भाई से, be together, क्या मेरे साथ है? be together. क्या मेरे साथ है? When you try to compete, और जब आप कोशिश करेंगे मुकाबलाबाजी करने की, this is another sister. और ये एक और बहन। Listen to me now. और अब सुनिएगा So मुझे। jealousy carries two more spirits with it. और जो हसद है वो 2 और रूहें लेकर आएगा। Number one, पहली, what is this? ये क्या है? No. Comparing. और वो है मुआजना करना। Are you with me? क्या मेरे साथ है? And the second is competitive. और दूसरा है मुकाबलेबाजी करना।
You with me? क्या मेरे साथ है? Let me explain and close it. और आए मैं इसको बयान करूं, फिर हम यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। What Lucifer was doing in heaven, लूसीफर क्या कर रहा था आसमान पर? he was trying to compete with God. और वो कोशिश कर रहा था खुदा से मुकाबलेबाजी की। So competition और जो मुकाबला है and then comparing और जो मुआजना है and then jealousy, और फिर हसद, 3 things together. 3 चीजें इकट्ठी, He saw God, और उसने खुदा को देखा he compared with him, और उसने उसका मुआजना किया, and then he tried to compete with him, और फिर उसने कोशिश की मुकाबलेबाजी की, and then he is now trying to jealous from God. और वो फिर खुदा से हसद में मुब्तला हुआ। competition, Competition, comparing, कंपैरिजन, comparison, कंपटीशन competition, एंड देन जेलसी। and then jealousy. What is a sign और क्या है निशान person is in competition? कि कोई शख्स आपके मुकाबले में है? How you can how you can know the person is sitting beside you और कोई शख्स आपके साथ बैठा है and he is carrying the spirit test, और वो spirit of इस किस्म competition, की जो है वो आप मुकाबलेबाजी की रूह लिए हुए अपने हुए, isolation, और वो होगा तन्हाई, isolation. और वो होगा तन्हाई। In which sense? किस किस नजरिए में? The person will feel insecurity. और जो गैर महफूज महसूस करेगा, He will feel insecurity. और वो गैर महफूज महसूस करेगा, Yes, he will feel insecurity. और He वो will गैर not talk much with you और वो आपके साथ ज्यादा बात नहीं करेगा, and easily offended. और बहुत आसानी से चला जाएगा, बहुत आसानी से गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा हो जाएगा। Write down the signs. Isolation. और तन्हाई, Number 2, feeling insecure. और दूसरा गैर महफूज महसूस करना, वो insecure feel करेगा। और वो महसूस करेगा मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ, Easily offended. और बहुत जल्द गुस्सा कर जाएगा। These things, ये चीजें, when you find in someone, और जब आप किसी में देखें, you will find he is in a red zone. और आप देखेंगे कि वो रेड जोन में है, उसके साथ ये स्पिरिट काम कर रही है। Now we already deal the spirit of jealousy now. और अब हम पहले ही बात कर रहे हैं हसद की रूह के साथ। Let's go to the part of deliverance. और आए हम अब इससे रहाई की बात करते हैं। Number 1, पहले नंबर पर, acknowledge you are jealous. और इस बात का पता हो कि आप हसद में मुब्तला है। Person will not get deliverance from the spirit of jealousy if he don't know. और वो शख्स कभी भी रहाई नहीं पा सकता हसद की रूह से जब तक वो उसको मालूम नहीं है कि वो हसद की रूह के अंदर है। Let me give you master key. और मैं आपको इसकी चाबी दूंगा। The person who is under the spirit of jealousy, और जो शख्स हसद की रूह के अंदर है, he will not accept I am jealous. और वो कभी भी कबूल नहीं करेगा उन लोगों को जो हसद नहीं करते। When you say, जब आप कहेंगे why are you jealous from me? क्यों तुम मुझसे हसद कर रहे हो, And then indirectly he will say, I'm not jealous. से वो कहेगा कि मैं तो नहीं हसद करता, I'm not jealous. मैं किसी से हसद नहीं, I have this, I have this, I have मेरे this. पास तो ये सारी चीजें हैं, मैं नहीं हसद करता। The moment he will explain what he has, और जिस वक्त वो बयान कर रहा होगा कि उसके पास क्या है, smell the competition. और उसको आप सूंघे कि उसमें मुकाबलेबाजी की रूह है कि नहीं, Smell the competition, smell the comparison. और मुआवजे की रूह देखें आप। Are you with me? क्या मेरे The साथ? first key, master key, he will not accept or admit. और वो कभी भी जो है वो कबूल नहीं Why करेगा। we are jealous? They हम are. क्यों हसद करेंगे? Are you with me? क्या मेरे साथ है? Now, this is the deliverance part. और अब है रहाई का Number 1, पहले नंबर पर। if you feel अगर आप महसूस करें in your life that you are under it, जिंदगी में nobody is perfect. कि कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है, We are here to practice holiness. और हम यहाँ पर मुकद्दस बनने की अमली तौर पर मुकद्दस बनने की प्रैक्टिस So कर रहे हैं। number 1, पहले नंबर पर, need acknowledgement और जरूरत है आपको इल्म होने की, that I am jealous. हाँ मैं हसद करता हूँ, God like confessions. और खुदा को पसंद है कि कोई कबूल करे, इकरार करे। Second point, repent चीजें। and confess. और जो है वो आप माफी मांगे और इस बात का इकरार करें, Repent and confess. और माफी मांगे और इकरार करें। Number 3, और तीसरे नंबर पर, recognize और पहचाने what God has done और खुदा ने क्या किया है in past माजी में, and what he is doing. और वो क्या कर रहा है। When you are focused what he has done in past for you और जब आप फोकस करेंगे कि उसने माजी में आपके साथ क्या किया and what he will do in future, और वो क्या करेगा आने वाले वक्त में, great things, अजीम अजीम चीजें, not be jealous from others. फिर भी आप दूसरों से हसद नहीं करेंगे, Ungratefulness, और आपकी नाशुक्री है it will leave you. और वो आपको छोड़ देगी।
Now, number 4, और चौथे नंबर पर season of everyone. और हर एक का एक मौसम है, हर एक का एक वक्त है। You need to understand. आपको समझने की जरूरत है। Everybody has a season, और हर एक शख्स का एक वक्त होता है, एक मौसम होता है has a reason. और उसकी भी एक वजह है God has a reason और खुदा के पास वजह है for you के लिए, to change your season. ताकि आप अपने मौसम को तब्दील करें। God bless you. Shalom. खुदा उन सबको बरकत दे। शालोम। So now listen. सुनिए, Now dealing with the spirit of jealousy. और जेलस की रूह के साथ निपटने के लिए Before you pray, इससे पहले कि हम दुआ करें go back to your house और अपने घर में वापस जाएं after the service. सर्विस के बाद, Listen this message one more time, और एक दफा फिर इस मैसेज को दोबारा सुने or read your notes. और अपने नोट्स को या दोबारा पढ़ें, उनको रिवाइज करें, दोहराएं। Identify the issues in your own life. और आपकी अपनी जिंदगी में जो आप मसाइल से गुजरे हैं उनके बारे में सोचें। Let me tell you, मैं आपको बताऊं, spirit of jealousy और जो रूह है हसद की, even will not stop others. हत्ता के दूसरों को भी नहीं रोक सकती, दूसरों को नहीं रोकेगी. It will stop you also. वो आपको भी रोकेगी Get your own blessings. ताकि वो अपनी बरकत को भी ना हासिल कर सके। Let's have a prayer. आए हम दुआ करें Father, in the mighty name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम, I pray every one of them, और हर एक के लिए मैं यहाँ पर दुआ करता हूँ Lord, touch their lives. कि जिंदगी को छू In खुदावन, the area they are weak, और जहाँ कहीं ये कमजोर है जिंदगी के जिस हिस्से में इनको छू मेरे let खुदावन, competition over, और अब इनकी मुकाबलेबाजी खत्म हो, let comparison over, और अब मुआजना खत्म हो, let jealousy over, और अब हसद खत्म हो, let the love of Christ lead. और यीशु मसीह का खून यीशु मसीह का Let मसीह की मोहब्बत में lead करे. इनको लीड करे, Let the power of the Holy Spirit control their lives. और इनकी जिंदगियों को कंट्रोल करे पाकरू की ताकत, Let the power of the Holy Spirit touch their lives. और इनकी जिंदगियों को छुए पाकरू की ताकत, And I declare, और इनकी जिंदगी पे मैं बोलता हूँ, let heaven और अब आसमान open for their lives. इनके लिए खुले, इनकी जिंदगियों के लिए खुले, Change their families, Lord. और इनके खानदानों में तब्दीली हो यीशु, Remove competition. और खत्म हो मुकाबलेबाजी In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. we यीशु pray. के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. Share Shalom. this teaching with as many times as you can. और जितना With your ज्यादा आप friends and इसको शेयर कर family. सकते हैं अपने खानदान वालों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ इस टीचिंग को ज्यादा से You ज्यादा know, शेयर करें। I already preached it. और मैंने पहले ही आपको इसके बारे में तालीम दे दी है, If you want to preach this message, और आप चाहते हैं इस मैसेज को प्रीच करना, just put a click button और and send to someone. और इसको क्लिक करें और किसी को भेज दें, And that's mean you are sending the gospel to others. और इसका मतलब होगा कि आप इसको प्रीच कर रहे हैं। God bless you. Shalom. खुदा उन सबको बरकत Peace दे and life to you. और अमन और सलामती आपकी जिंदगी के लिए। Amen. आमीन।